Just a sec. Okay, so let us continue and talk about the commonly used ratios. Okay, so first, any understanding on what is a ratio? Like in a layman's language, ratio का मतलब क्या होता है? uh, Two things are being compared to each other, like how they are like how much they are performing compared to each other. Yes, Ratios help each other. relationship between two numbers, Two basically. numbers, sorry, please. So Yes, again, relationship also and a comparison between those two numbers, wherein there is a numerator, there is a denominator, and we compare how much one is larger than the other and whether the overall ratio is less than one, more than one, etc. Right? अब yes. ratios finance में क्यों use कर सकते हैं? Like how can we use ratios in finance? So can I compare ratios within the company itself, or should the ratios be for one company versus the other company's numbers? Tell me. Both can be utilized. Like for example, the company can be one company can be compared with the other company, but the limitation is that it should be the same industry, not one industry to another industry. And within the company means the income statement, like how the sales is performing to other operations, like how operations are being effectively utilized in the so that within the same company. I mean, Right. horizontal analysis and vertical analysis. Yes, that's correct. So we know what a ratio is. So again, we also know that ratios are used in finance. Why are ratios used in finance? Because they compare different components of the three financial statements with either their own financial statement. For example, we may have a ratio which compares two components of the income statement itself, or a ratio can also be where one component of the income statement is compared to a component of the balance sheet. So can you try and give an example of a ratio जिसमें दोनों components आपके balance sheet के ही होते हैं? I mean, Liquidity ratio, current asset by current liability. correct, correct. That's true. So current assets and current liabilities both are balance sheet components. So to Yes. understand ratios, what is important is कि आपको financial statements की एक अच्छी understanding होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? Because a good understanding of the financial statements will help you identify कि आपका numerator कहाँ से आ रहा है और आपका denominator कहाँ से आ रहा है, right? For example, if I take this example of ROE, right? ROE you can see is PAT upon net worth. What is PAT? Profit after tax. Profit after tax. The net income. Yes, so the net income. अब net income कहाँ से आ रहा है? Income statement. And the net worth is nothing but shareholders' equity. That is coming from the balance sheet, right? So, Yes. to start with the ratios, we need a clarity कि profit after tax is a part of your income statement. And income statement is prepared over a period of time, right? So, it Yes. captures the figures जो पूरे साल में आपने किया. And net worth is an amount which is एक particular day पे आप कहाँ पे stand करते हो. So that is what it means. Okay, so logically we'll see why do we take averages, why do we take weighted average, why do we compare these two numbers going ahead. But let us go one by one. Profitability ratio. Now, profitability से आपको क्या पता चलता है? Simple है. कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है ऑन पर रुपी ऑफ सेल्स. मतलब 1 रुपए के सेल्स पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, Mhm. राइट? सो इफ अ Yes. कंपनी इज earning 1 rupee, can the profit be more than one? Sorry. So can, if the company is earning 1 rupee of revenue, so on Mhm. revenue of 1 rupee, can the profit be more than one? Yes. 1 rupee on per rupee, 1 rupee of sale, 1 rupee earning. Think about it. So logically the question is आपको 1 रुपए का रेवेन्यू हुआ है. रेवेन्यू मतलब आपने सेल्स किया, उसमें आपको पैसे हाँ. मिले 1 रुपए. तो आपका जो प्रॉफिट है, जो आपकी इनकम है, क्या वो 1 रुपए से ज्यादा हो सकती है? नहीं. वो मैक्सिमम 1 रुपए हो सकती है. ओनली व्हेन देर आर नो एक्सपेंसेस एट ऑल, राइट? बट अगर Yes. कोई खर्चे हैं तो वो 1 रुपी से कम ही होगा. वाई? बिकॉज इफ माई सेल्स इज 100 रुपीज एंड एट मैक्स व्हाट कैन हैपन इज माई प्रॉफिट कैन ऑल्सो बी 100 रुपीज इफ देर आर नो एक्सपेंसेस. बट अगर दस Yes. रुपये का भी एक्सपेंस होता है कुछ, तो आपका Yes. प्रॉफिट कभी भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट? इट विल ओनली बी लेस देन 100.
So Yes. this. So that means to understand profitability ratios, we must know the we must have an understanding of the walkthrough of the income statement. So tell Okay. me, what are those components till the point we arrive at the net income? Start Sales. revenue. Yes. Yeah, from a top-down approach, it will be sales, then deducted by the cost of the COGS, all the direct expenses. Then we will have the gross profit, and then from it we will be deducting the Mhm. operating expenses, all sales and administration expenses. Then we will arrive at the EBITDA, and from there we will be depreciating the depreciation and amortization. Then we will be arriving the profit after profit before interest and taxes, and then we will be deducting all the interest if there is any debts on the company that will be deducted. Then we will be getting profit before taxes, and Mhm. then we will be having all the levied taxes on the revenue. Then we will have a profit before profit after tax, the net income. Correct. So after the net income, you may also calculate the basic and the diluted EPS. तो आपको जनरली इसी स्टैंडर्ड या इसी टेम्पलेट इसी फॉर्मेट में हर एनुअल रिपोर्ट में इनकम स्टेटमेंट मिलेगी. ओके. So why did I stick to the income statement? Because when I talk of profitability, profitability is nothing but the margins. Okay. Margin मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला? Profitability is always assessed as per the rupee of sales basis. मतलब रेवेन्यू के अकॉर्डिंग आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, आप हमेशा वही देखोगे ना. यू विल नॉट कंपेयर योर प्रॉफिट बेस्ड ऑन आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं. योर Mhm. प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर टू डू विद द अमाउंट ऑफ सेल्स यू मेक. अगर आपने Yes, 5 प्रोडक्ट सेल किए उसका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज ऑलवेज कंपेयर टू द रेवेन्यू. दिस वी नो. नाउ इफ द yes, प्रॉफिट इज ऑलवेज कंपेयर टू द रेवेन्यू, देन द डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी द रेवेन्यू फॉर कंपैरिजन. दैट मीन्स आप देखोगे कि अगर मुझे 20 रुपए मैंने कमाया, तो 20 रुपए मैंने अपनी सेल्स पे कमाया. तो 20 रुपए yes, डिवाइडेड बाय द सेल्स शुड इंडिकेट माई प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज. Correct. yes, अब आपको you know from the income statement format that you have EBITDA, you have EBIT, you have gross profit, you have net profit. So starting from the top, सबसे पहले क्या आता है? Gross profit आता है, right? yes, Gross profit कैसे आता है? Simply revenue minus the direct cost. That is your gross yes, profit. Gross profit के बाद आता है EBITDA. Then you get the yes, EBIT and then you get the EBT and then PAT. So यहाँ पे they yes. have only mentioned EBITDA and PAT. The why? Because they are mentioning the two main parameters of profitability are these. But do we know more? Yes, we know that there is gross profit margin also and there is EBIT margin also. So अगर EBITDA margin is EBITDA upon sales, so what will be the gross margin? Gross profit upon sales. Right? Yes, And what will be the EBIT margin? It will be EBIT upon sales. So yes. profitability ratios are the most simple. अब इसमें आप कहोगे कि हाउ डू वी कंपेयर, राइट? सो ओके, नाउ you know from the income statement that gross profit only captures the direct cost, right? So अगर आपका Yes, gross profit let's say 60% है, so can you think and tell me कि gross profit और percentage और 60% का मतलब क्या हुआ कि आपका direct expense कितना है? बता सकते? 40%. 40% is your direct expense. Perfect. So, in this ratio or in the gross profit margin, am I at all talking about the indirect expenses? No, I don't know. No. Why? Because अब मेरी वैल्यू कितनी रह गई? 60%. अब इस 60% में से कुछ पार्ट मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा. वो कितना पार्ट है? इफ आई वॉन्ट टू लुक एट दैट, which margin should I look at? The We have EBITDA, to, the EBITDA margin, right? yes. So your gross profit margin was 60%. Now let's say your EBITDA margin is 40%. What does that mean? Gross profit was 60% and EBITDA margin was 40%. Yes. So now it will be 20% profit. 20 is what? 20 will be the EBIT or the No, no, no. profit before interest and taxes. No, 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 no. Listen. Sorry, Huh. sorry. So take 2 more minutes and think about it. So I'll repeat, your gross profit margin is 60, your EBITDA margin is 40. Yes.
What does it mean? EBITDA is 40%. 40%. Think of revenue as 100 and then tell me. Let's say revenue was 100. Your gross profit is 60. That means your gross profit is 60 rupees. Okay. Yes. And your EBITDA is 40 rupees. So where did Yes. 20 go? 20 was in that indirect expenses, that sales and administration and operation expenses. Yes. So the indirect expenses are how much? 20%. अब आपका क्या Yes. क्या EBITDA was your 40%. Now let's say now I tell you your net income is only 10% of revenue. So अब ये 40 से 10 का ब्रिज क्या होगा बताओ? So EBITDA was 40 and net income is now 10%. So you Yes. will have to think of कि EBITDA और net income के बीच में जो जो components है that is the remaining 30%. Expense 20%. So EBITDA कितना बोला था मैंने? 40. 40 बोला था ना? अभी 40 बोले थे हम. नेट इनकम वो मैं आई से 10%, तो 30% हुआ ना डिफरेंस. सो Yes. दैट 30% डिफरेंस क्या क्या हुआ? दैट इज डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, Yes. इंटरेस्ट एंड टैक्स. Yes. तो 3 वो सब components. माइनस कर करके फाइनली 10% मेरा नेट इनकम प्रॉफिट है. नाउ टेल मी इफ आई वांट टू नो माय ऑपरेटिंग मार्जिन. तो इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? एबिटा को बोलते हैं ऑपरेटिंग, या आपके एबिट को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट? EBITDA. श्योर? Yes. No, it's EBIT. EBIT is generally called as the operating profit. Why EBIT is the operating profit? क्योंकि depreciation and amortization are non-cash expenses, right? And after Yes. subtracting them, we arrive at EBIT. So EBIT is taken as a, so EBIT को भी exactly operating नहीं बोलते हैं because it may also have components which are non-operating, but synonymously हम EBIT को बोल सकते हैं that EBIT is called as the operating profit. Now if EBIT is the operating profit और आपसे कोई पूछे what is your operating margin, तो आप क्या जस्ट कैलकुलेट? एक डॉट है. हाँ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब आप आपके ऑपरेशंस में से कितना लाइक आप रेवेन्यू जनरेट लाइक प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं ना. हाँ करेक्ट. तो आप उसको एबिटा क्यों कंसिडर नहीं कर सकते अपन लाइक एबिटा. क्योंकि depreciation and amortization are not basically operating, so they are non-cash expenses, they are not operating in nature, they are just a charge against your fixed assets, ओके. right? आपके वो आपके fixed assets का एक charge है which needs to be subtracted annually, but is that depreciation coming out of operations? No, it's a non-cash expense that needs to be subtracted because you have fixed assets in your balance sheet. ओके. तो depreciation आपके operating activities से generate हो रहा है क्या? नहीं ना? नहीं. That's just a charge. So after यस. subtracting that, what you arrive at is EBIT, and that should be taken ओके. as a. And again, this is a good point you made. So थोड़ा सा और देखो, depreciation and amortization is one reason why I feel operating होना चाहिए as EBIT. आप इसी क्वेश्चन को एक बार और देखो, ढूंढो इसके आंसर्स, ठीक है, एंड देन यू कम अप विद एन आंसर. खुद से ढूंढने की भी आदत होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली आई एम देयर टू मेक इट अवेलेबल टू यू. ठीक है, सो एक बार ढूंढ के मुझे और बताना कोई रीजन आपको मिलता है तो. ओके. चल. ओके. हाँ. सो वी आई थिंक आर क्लियर विथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज द मोस्ट सिंपल ऑफ ऑल. कुछ नहीं करना है, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. दैट्स इट. नेट सेल्स का मतलब आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट the returns also. Okay. And we've got something in the chat box which is also very important for you. So ये जो chat box में आप डाल रहे हो, try to also put it in the group, right? So that everybody has an access to it and आप भी इसको बाद में refer कर पाओ. Okay. चलो, let's move a little away from the profitability ratios because again आपको कोई बोलेगा नहीं, but profitability ratios तो आपको calculate करना ही है. Okay. Now the return ratios are more important. Why are return ratios important? Because I had already explained to you that there are two or three major shareholders of any business or any company. What are those shareholders? Tell me. A company operations क्यों करती है? What is the purpose of running a business? It's wealth maximization, right?
Earlier it Yes. was profit maximization, now it's wealth maximization. किसका wealth maximization? ओनर्स का, शेयर ओनर, होल्डर्स का। ओनर्स का, या फिर हम रेसिडुअल ओनर्स बोल सकते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न जितना मैक्सिमम होगा उतना कंपनी बढ़ेगी, उतना कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, एंड मोर इन्वेस्टर्स विल कीप इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, यस। logically, right? But a company also has an obligation towards its debt holders because have taken a loan and now they are supposed to pay an interest to those debt holders. तो यस। रिटर्न की जब हम बात करते हैं, रिटर्न कम्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेजरली द इक्विटी होल्डर्स, बट ऑल्सो टेकिंग इन टू द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मेरा जो कैपिटल है, राइट, इफ आई हैव लाइक 100 रुपी टुडे दैट आई एम डूइंग माई बिजनेस विद, I had explained that that 100 rupee might not just be coming from my own money, my own funds. उस 100 में से कुछ पार्ट हो सकता है डेट होल्डर्स का, ठीक है? सो एज एन एनालिस्ट, एज एन इन्वेस्टर, यू शुड बी एबल टू गिव एन इन्वेस्टर एन इम्प्रेशन कि अगर मैं सिर्फ आपका 60 रुपीज वाला पार्ट लेके रिटर्न कैलकुलेट करूँ तो कितना रिटर्न आएगा, और जब मैं पूरा 100 अज्यूम करके रिटर्न कैलकुलेट करूँ तो कितना रिटर्न मिलेगा। आपको समझ आ रहा है द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग 100 एंड ओनली 60? सो आप कैलकुलेट तो इवेंचुअली एक इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही कर रहे हो, बिकॉज डेट होल्डर्स को तो सिर्फ अपने रिटर्न से मतलब है। द डेट होल्डर्स एज सुन एज दे गेट द इंटरेस्ट दे विल वैनिश, राइट? बट हु इज गेटिंग दिस रिटर्न, टेल मी? रिटर्न किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, राइट? सो अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं या एक कंपनी भी इंटरेस्टेड हो सकती है टू चेक कि उनका सिर्फ और सिर्फ इक्विटी को कंसिडर करके कितना रिटर्न आ रहा है और उनका इक्विटी प्लस डेट को कंसिडर करके कितना रिटर्न आ रहा है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द रिटर्न ऑन इक्विटी, so I am using the word equity. So what should be the denominator? Only the shareholders' equity and not the amount of debt. But mind me saying this, किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या सिर्फ इक्विटी होता है? नहीं। There is quite a possibility that the company is 100% equity financed, but there is a high possibility that उस कंपनी पे डेट होगा, राइट? तो अगर यस। डेट होगा, सो ये न्यूमरेटर is not capturing the amount of debt in ROE. If I add the debt here, what will this become? It will become the capital employed. Did you get this point? ये समझ आना चाहिए। मैंने आरओई में सिर्फ इक्विटी कंसिडर किया, बट जब मैं हाँ। इक्विटी डेट को ऐड कर दूं तो वो क्या बन हम्म। जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। ओके, द टोटल डेबिट डेब्ट एज वेल एज द इक्विटी कंपोजिशन। करेक्ट। एंड दैट इज व्हाई कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज और टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट, ठीक है? आई टेल यू व्हाई दिस इज मेंशन्ड, अभी इसको मत देखना, जस्ट लुक एट टोटल हम्म। इक्विटी प्लस टोटल डेट, ठीक है? ओके। नॉन करंट लाइबिलिटीज भी हम जनरली इंक्लूड करते हैं इन द कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज क्यों करते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को इंक्लूड? क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या इंक्लूड कर सकती हैं? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन। अब जो लॉन्ग टर्म इवेंचुअली। लोन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डेट ओनली, राइट? यस। वो टोटल डेट का पार्ट बनता है। बट जो करंट लाइबिलिटीज है, दे डू नॉट generally mean the capital employed, right? They mean the short term liabilities. क्योंकि the हम्म। current portion of debt is nothing to do with the company utilizing that money for the long run. जो भी यस। कंपनी, अब कंपनी अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट करती है तो सिर्फ 6 महीने 1 साल के लिए तो नहीं करती है। दे कीप दैट यस। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट टेक करंट लाइबिलिटीज एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। वी शुड टेक द नॉन करंट लाइबिलिटीज ओनली, राइट? मेक सेंस? ये क्लियर है? यस। ओके। सो रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपली मतलब क्या हुआ? रिटर्न इक्विटी पे, सिंपल। ऑन इक्विटी मतलब रिटर्न ऑन द इक्विटी। अब इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, पार्ट यस। ओनरशिप इन द बिजनेस, राइट? पीपल हु हैव इन्वेस्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉट गेटिंग एन इंटरेस्ट बट गेटिंग डिविडेंड्स और गेटिंग प्रॉफिट्स, राइट? कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर का गोल क्या होता है? Wealth maximization. That means they want their money to appreciate and at the same time they want to achieve some dividends, correct? यही दो प्राइमरी यस। ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि आप क्यों किसी कंपनी के इक्विटी इन्वेस्टर बन रहे हो।
और एक डेट होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? To earn consistent रिटर्न। returns. हाँ, तो रिटर्न्स नहीं बोलेंगे, मे बी अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट नीड्स टू बी पेड। एंड एक डेट होल्डर ये भी सोच सकता है कि मैं अपना पैसा ब्लॉक क्यों करूं एक कंपनी में, राइट? एक कंपनी को डेट दूंगा, वो डेट अमाउंट रीपे कर देंगे, आई विल गेट द प्रिंसिपल, आई विल गेट द इंटरेस्ट, आई कैन नाउ इन्वेस्ट दिस अमाउंट समवेयर एल्स एज वेल, राइट? सो डेट होल्डर विल नॉट बी इंटरेस्टेड कि आप कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, लाइक दे विल वांट टू नो, बट एट व्हाट लेवल? सो ये सोच के बताओ मुझे, इनकम स्टेटमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू में रखे, दैट एक डेट होल्डर के लिए, विल द डेट होल्डर एवर रीच द पॉइंट ऑफ नेट प्रॉफिट? क्या उसको फर्क पड़ेगा कि आपने कितना टैक्स पे किया, आपने कितना, यू नो, हाउ मच टैक्स यू पे टू द गवर्नमेंट, और हाउ मच इज योर नेट इनकम? और विल ही केयर No, मोर अबाउट दैट प्रॉफिट जिससे उसका रिटर्न पे होना है? एबिट में इंटरेस्ट रहेगा उसको खाली, करेक्ट। एबिट तक। यस, एबिट तक। एंड दैट इज Yes. व्हाई कैन यू सी एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एबिट Mm-hmm. यहाँ पे क्यों है, इधर क्यों नहीं है? ये समझ आया आपको? Yes, got it. हाँ, Got सो it. एबिट इधर इसलिए है बिकॉज यहाँ पे डेट भी आ गया, और जहां डेट आ गया वो डेट वाला बंदा कहेगा मुझे नेट इनकम से मतलब नहीं है, राइट? यहाँ पे हमने Yes, पैट क्यों लिया है? क्यों? क्योंकि क्योंकि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी वाला तो कहेगा कि मुझे अपना रिटर्न तो टैक्स पेमेंट के बाद ही मिलने वाला है, तो आप टैक्स पे कर दो, उसके बाद जो रिटर्न बचे मुझे उस पे रिटर्न कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना मिलेगा। लॉजिकल, हम्म। राइट? सो Yes. दीज टू रेशियोज माइट लुक सिंपल, बट इस पे बहुत कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई, मेरा एक डाउट है कहाँ, हाँ बताओ। सॉरी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में अपन वो इक्विटी और डेब्ट दोनों को कैलकुलेट क्यों करते, लाइक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैपिटल एम्प्लॉय? Capital employed is nothing but how much is, what is the source of finance for a business? So if I have अच्छा। to answer, तो आप ये सोचो किसी भी कंपनी के लिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे? या तो उधार, हम्म। या अपना पैसा। दैट्स फाइन। यस। अपना पैसा इज ओके। इक्विटी, उधार इज डेट। तो कैपिटल यस। एम्प्लॉयड मतलब जो कंपनी ने कैपिटल को इनकॉर्पोरेट किया इन द कंपनी टू रन इट्स बिजनेस, दो तरीके से ही कर सकते हैं, इसलिए वो दो चीजें ही हम ले रहे हैं। ओके, और गॉट ये इट। वाला फॉर्मूला क्यों लिया? बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है? टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस द शेयर होल्डर्स इक्विटी। और वो यस। टोटल लाइबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, मतलब यस। करंट एंड नॉन करंट। तो एसेट्स यस। तो आपने पूरे ले लिए, बट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटीज में से आप नॉन करंट वाला पोर्शन माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन करंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ टोटल इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका इक्विटी इंक्लूड होना चाहिए ना, तो आप उसको माइनस नहीं यस। कर सकते। समझे आप? अगर मैं ओके। इससे नॉन करंट लाइबिलिटीज भी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? सिर्फ इक्विटी बचेगा। यस। बट आई वांट टू इंक्लूड द डेट ऑल्सो। यस। तो सो टू इंक्लूड द लॉन्ग टर्म डेट आई कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और द नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये क्लियर होना चाहिए, एंड आई थिंक क्लियर होगा, राइट? सो यस, हो गया। अबाउट इट, सो इवेंचुअली इट विल मेक सेंस। सो यस। आई थिंक दीज टू आर फाइन। अब आपको क्या करना है? योर टास्क शुड बी टू लुक एट और स्पॉट द आरओई एंड द आरओसीई फॉर डिफरेंट कंपनीज इन देयर एनुअल रिपोर्ट। इसमें आप और कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लुक एट हाउ डू वी अराइव एट पैट, हाउ डू वी अराइव एट नेटवर्थ। अब देखो, नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ रिजर्व्स एंड सरप्लस, आपको पता है कि द नेट प्रॉफिट दैट वी अर्न इन द इनकम स्टेटमेंट गेट्स एडेड टू द रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट, यस। राइट? सो इक्विटी यस। कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस बोथ कंप्राइजेस ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्योंकि जो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने आपको उस टाइम भी एक्सप्लेन किया था, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से एक कंपनी क्या पे करती है? डिविडेंड्स, राइट? So यस। dividends are paid from the retained earnings, and those retained earnings become a part of the surplus or the reserves in surplus. अगर कंपनी रिटेन नहीं करती है तो वो क्या करेगी? इट्स, डिविडेंड। नो, अगर वो रिटेन नहीं, हाँ करेक्ट, अगर वो रिटेन करती है देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस, अदरवाइज वो डिविडेंड्स पे कर देगी, राइट? यस।
सो ये फॉर्मूलाज थोड़े क्लियर होने चाहिए नाउ। आरओई इतना इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू दैट इट्स नॉट जस्ट दैट कि उसका फॉर्मूला पैट अपॉन नेटवर्थ है। आरओई कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसमें आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया इनटू पैट अपॉन नेट सेल्स। नाउ टेल मी पैट अपॉन नेट सेल्स को क्या बोलते हैं, ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है इन द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। So it's nothing but the margin of net income. Yes. So it's PAT upon net sales become the PAT को क्या बोलते हैं, net profit. So it becomes a Yes. net profit margin. Yes. Now think of this equation as डिनोमिनेटर में नेट सेल्स है, न्यूमरेटर में नेट सेल्स है, तो कैन वी इसको कट कर सकते हैं। मैथ्स में यही करते थे ना हम, 1/5 इंटू 5/10, तो 5 कट गया 1/10, राइट। Yes. सो नेट सेल्स कट हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या बन गया, पैट अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स भी कट हो जाएगा क्योंकि वो भी कॉमन है। तो इवेंचुअली तो इक्वेशन क्या बनी, पैट अपॉन नेटवर्थ। बट इन्होंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया इनटू 3 डिफरेंट रेशियोज। क्यों ब्रेक किया, सोच सकते हो। वो इसलिए ब्रेक किया ताकि हम आरओई को और बेटर समझ सके। सो आरओई कैन ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर। अब क्यों है ये, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आपके नेट सेल्स फॉल हो गए, तो क्या आपके नेट से सॉरी आपका फिक्स्ड एसेट फॉल हो गया, तो क्या आपका फिक्स्ड एसेट आपके आरओई को इम्पैक्ट करेगा। इसको समझने के लिए हमने इस इक्वेशन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सो आई कम टू द डू पॉइंट एनालिसिस इन अ वाइल, बिकॉज डू पॉइंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आरओई। मैंने आपको बोला था यहां तक पढ़ने के लिए, राइट। Yes. पॉइंट हम समझेंगे, बट इट्स बेटर टू डू इट इन एक्सेल। सो आई टेक इट अप टुमारो। अभी लेट अस Okay. फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिटर्न रेशियोज। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। Yes. आपने इनिशियली सुना होगा आरओआई। आरओआई भी होता है, राइट। Yes. आरओसी, आरओई सीई नहीं होता। आरओआई का फॉर्मूला बता सकता है कोई। सो इट्स अबाउट यू टेकिंग एडमिशन इन एन एमबीए कॉलेज। लेट्स से कि आसिफ आपने एक एमबीए कॉलेज ज्वाइन किया, आपने उसके लिए फी पे करी, लेट्स से 8 लाख रुपीज फॉर अ टू ईयर एमबीए प्रोग्राम, ठीक है। अब 1 साल बीत चुका है, आपकी प्लेसमेंट्स का टाइम आ चुका है, आप पता है क्या बोलोगे। आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट माई आरओई इज 2 years, या माई आरओई इज दिस मच। तो व्हाट डज अ आरओई मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेकिंग एडमिशन इन एन एमबीए कॉलेज। इट मे मीन कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, बताओ आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 8 lakhs। 8 lakh. मुझे Yes. पैकेज मिला 6 lakhs, ठीक है। तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। सो लोग ऐसे ही बात करते हैं कि व्हाट इज योर आरओई और व्हाट इज योर Okay. आरओआई। आरओआई मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिला। तो अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को पूरा रिकवर करना है, आपको कितना टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा टू रिकवर दैट 6 lakhs, and then Yes. additional half a year to recover another 3 lakhs, राइट। सो आपको 1.5 साल देना पड़ेगा टू रिकवर योर ओरिजिनल कैपिटल ऑफ 8 लाख जो आपने पे किया है। तो योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी 1.5 year, कि 1.5 year में आपको के बाद आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा, राइट। Yes. सो व्हाट इज अ रिटर्न, रिटर्न इज एनीथिंग ओवर एंड अबव योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। Yes. तो तभी ना, जब भी आप कोई कॉलेज की बात करते हो, यूनिवर्सिटी की बात करते हो, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं इसमें आरओई क्या मिलेगा मुझे, व्हाट इज माई आरओई और व्हाट इज माई आरओआई। तो दे मीन टू आस्क कि अगर आज मैं 12 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन माई एमबीए, विल आई बी एबल टू रिकवर दैट इन क्विकली, क्या मेरा उस पर रिटर्न मिलेगा मुझे आफ्टर आई एम डन विद माई एमबीए। So I have Mm. heard these a lot of people talk about it, and even I have spoken of these words. So try and connect things like that. Now tell me ROI क्या होता है? You can use Google, you can use anything, use your understanding. ROI का formula बताओ, and it's very simple. Just give me the formula. Net return by cost of investment. Correct. So in the Return. example I gave you, denominator will be 8 lakhs. ठीक है। Yes. लेट्स से आपका पैकेज लगा 12 लाख का, तो अब आपका Okay. आरओआई कितना हुआ, 4 लाख अपॉन 8 लाख, 50%। क्यों 50%, बिकॉज योर न्यूमरेटर नेट रिटर्न, नेट रिटर्न मतलब
the amount which you have gained minus the amount which you have spent. Mm-hmm. How much amount you have gained? 12 lakhs. And how much you have spent? 8 lakhs. So the difference Yes. is your return, right? 4 lakhs extra आपने कमाया by spending that 12 lakhs. By spending Okay. that 8 lakhs. 8 लाख स्पेंड करके आपको 12 का पैकेज मिला, मतलब आपको 4 लाख का रिटर्न मिला ऑन अ कैपिटल ऑफ 8 lakhs. So your ROI becomes 1 by 2, which is 50%, right? So ROI, ROE, ROCE, ये तीन इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं दैट यू मस्ट बी नोइंग. एंड इस पे आपके एग्जाम में भी कभी आप अगर ये वाला एग्जाम देते हो सीरीज 15, एक दो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द न्यूमरेटर. ROE टेक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ROCE टेक्स एबिट. ओके. और कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए EBITDA दे देंगे और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अलग से दे देंगे. तो आप क्या करोगे? यू विल सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड देन टेक EBIT इन द न्यूमरेटर. ओके. फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है, देखो. ठीक है, लॉन्ग टर्म इक्विटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करंट मेच्योरिटीज. सो आपको यहाँ पे टोटल, मतलब ये एक बार देख लेना आप लोग एग्जाम्पल इन योर पीडीएफ एंड देन वी कैन डिस्कस. लेवरेज रेशियोज, नथिंग बट, लेवरेज का मतलब क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर. कि लेवरेज मतलब कि आपके कैपिटल में कितना डेट है. जितना ज्यादा डेट होगा क्या. ओके, लेट अस जस्ट डिस्कस कि डेट का इम्प्लीकेशन क्या होता है. आपके बैलेंस शीट में बहुत सारा डेट पड़ा है, तो कंपनी पे क्या ऑब्लिगेशन आएगा? उसको पे करना। कंपनी को और एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा इंटरेस्ट पे करने के लिए, राइट? सो इफ द कंपनी हैज टू पे हाँ। मोर एंड मोर इंटरेस्ट नाउ, सो रिस्की यस। रहेगा उनका बिजनेस. सो मोर डेट इज नथिंग बट मोर रिस्क. बट अगर डेट कंपनी लेगी ही नहीं, तो क्या ऑब्लिगेशन आएगा कि उनको बहुत ज्यादा रिटर्न्स देने पड़ेंगे टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? ओके। और रिटर्न से बेटर है कि वो 10-12% का इंटरेस्ट दे दे अपने लोन पे. तो दैट मीन्स हम्म। कुछ तो लोन होना ही चाहिए, कुछ तो डेट होना ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. बट क्या आपका डेट आपके इक्विटी से ज्यादा होना चाहिए? नहीं. राइट, हम्म। आइडियली योर डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन व्हाट? लेस देन 1. लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 रुपए की इक्विटी है, तो डेट 1 रुपए से कम ही होना चाहिए, राइट? ओके। So your debt to equity should always be less than 1. And what is the formula? Long-term debt upon net worth. Again, I don't think I need to explain this. देखो यहाँ पे लिखा है, On a most conservative basis, a debt to equity of 1 or less should be considered as a benchmark. For the same reason that debt should be less than equity. Okay? Interest coverage, अभी रुक जाओ, interest coverage पे हम आएंगे. Note it down. I'll cover this. Okay? लिक्विडिटी रेशियो क्लियर है सबको? बहुत बार डिस्कस हाँ। कर लिया है ना, करंट एसेट्स यस। अपॉन करंट लाइबिलिटीज. लेट्स स्किप दिस. क्विक रेशियो में क्या होता है? क्विक रेशियो बोलता है कि करंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूडेड है और इन्वेंट्री को कन्वर्ट करना उतना ज्यादा फीजिबल नहीं है. मतलब इन्वेंट्री को लिक्विडेट करना थोड़ा मुश्किल है. तो जब मैं इन्वेंट्री को हटा दे रही हूँ अपने करंट एसेट से, तो मेरा जो रेशियो है वो और लिक्विडिटी बता रहा है. Why? Because I'm excluding that part जो उतना liquid नहीं है. That is why inventory is subtracted. Is cash liquid? Yes. Think of our other current assets which are liquid. As compared to all those, inventory is the least liquid asset. तो inventory को हटा दिया तो क्या आया? Quick ratio. Again, तो this is a most stringent version of the liquidity ratio. That means quick ratio तो था liquid, but sorry, current ratio was liquid, but quick ratio और ज्यादा liquidity को दिखाता है. एकदम यस। current liquidity को दिखाता है. Again, this is used, both of them you will find in the annual reports. Efficiency, if you recall, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है. If not, refer to that recording and come back again. करा है हमने, right? We also talked about the cash conversion cycle. याद है? यस। एक्सेल में यस। भी किया था डिस्कस हमने, कैश कन्वर्जन हाँ। साइकिल. सो दिस, गयाना। हाँ। है ना, एग्जैक्टली. सो वहां पे हमने किया था. यू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस अगेन. ठीक है, एंड देन वील स्टार्ट विद डू पॉइंट टुमारो. डू पॉइंट के बाद आई विल शो यू द एक्सेल एंड एवरीथिंग. ठीक है. इफ टाइम परमिट्स आई विल टेक अनदर 1 hour in the evening if in case you guys are available. Abhi, let's यस। close it for the day so that you guys get some time on a Saturday to go through all of this. So I expect कि ये न्यूमेरिकल्स आप देख लोगे एक बार. ठीक है.
वेरी मच डुएबल, कोई बड़ी चीज नहीं है. कोई भी डाउट होगा प्लीज आस्क मी. सो ट्राई एंड डू दिस केस स्टडी बिफोर वी स्टार्ट द क्लास टुमारो. ओके. Okay, got it. I'll upload the recordings in a while. Let me know if Oh, there are any further questions in the group.